No voice breaks, no worries. Public, can we just confirm in? Just one person in? Start करें? Let's get going. Tired? College lectures? Prats? Don't worry, आज का lecture बहुत easy है. आज का lecture बहुत easy है. Alright, let's begin. मैं क्या बोल रहा था? Nephew किसको बोलते? Nephew किसको बोलते? चाचा को? Nephew किसको बोलते? भाई को? अरे NEPHEW nephew किसको बोलते? Nephew किसको बोलते हैं? Uncle son. पता नहीं है. I'm just asking. Just one person knows it. भाई का son. भाई के बेबी को. पकड़ा पकड़ी. भतीजा. खेल लो बॉस, खेल लो. एक चीज पे कंक्लूड हो जाओ, फिर बोलो. नो वरीज, आज करते हैं सब. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन फिर पक्का मैं स्टार्ट करता हूँ. वॉवल्स. तेरी वॉवल्स वाले क्वेश्चन याद है? वॉवल्स वॉवल्स. हैव यू हर्ड वॉवल्स? कौन से अल्फाबेट को वॉवल्स बोलते हैं? कौन से अल्फाबेट को वॉवल्स बोलते हैं? ए ई आई ओ यू. और ये किसको बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं? वो ए एंड ध को क्या बोलते हैं? व्हाट इज ए एंड ध? आर्टिकल. ओके, ये सब बेसिक्स याद है, राइट? एम आई करेक्ट? So today's lecture is going to be highly discussion based. तुम्हारे साइड से आंसर्स आएंगे, मेरे साइड से सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, डोंट कीप इट पेंडिंग. कुछ भी क्वेश्चन मार्क जोन में नहीं रहना चाहिए, कुछ भी रटना मत. पूरे 1.5 घंटे के डिस्कशन में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे वेर यू विल नीड मी. Otherwise, you won't require me. Rest all questions, I hope you will be able to solve. Ensure that you have a book and pen in place with you. Rough work and all चीज के लिए. Majority of these questions would be more important for Naipur, Fitz and Manipal. एक separate lecture आगे Fitz और Manipal के लिए जो अलग से questions आते हैं उसके लिए. Clear enough? Good to go? Good to go, boss? Now, there has been one problem with the supply chain team. Naipur students have received 3 booklets instead of 4, correct? Some of the Naipur students have received 3 booklets instead of 4. Please check if you have received only 3 booklets instead of 4. आपको 4 बुकलेट आए हैं, then more than great. But if you have received 3 booklets, I would say Naipur, BITS, Manipal, all 3. Naipur, BITS, Manipal, अगर तीनों को सिर्फ 3 बुकलेट आए, अगर किसी को भी 3 ही आए हैं, then I suppose the fourth booklet, which is important one, that is missing in that case. So that fourth booklet now will courier separately. Might take a bit of time, but we'll do it soon. And another problem, just keep tracking. I mean, अगर you're not going to be there any day, just keep us informed prior. At least अगर आपको कोई unknown number से call आ रहा है during your lectures, receive it. और वो courier वाले का number हो सकता है, ठीक है? And there is a chance of lockdown everywhere, right? I hope you guys are aware. I hope you guys are informed. तो अगर कुछ होगा उसके पहले I want to ensure that book reaches to you all and you get started. We're just trying to boost it as soon as possible. Start करें? स्नाइपर का एग्जाम तो सेंटर पे जाके ही होगा. घर से होएगा तो आईसीटी एमटेक का हो सकता है. उन लोगों ने लास्ट ईयर भी घर से लिया था. बिट्स मणिपाल का भी किसी एक का तो घर से हुआ था लास्ट ईयर भी. तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट एज वेल. गुड टू गो. फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा है जो शायद यू विल नीड मी. आगे के क्वेश्चन आई डोंट थिंक यू विल नीड मी. तो द फर्स्ट क्वेश्चन you should expect it maximum within 2 to 3 days if you haven't received it. First question goes here. Give it a try. I'll wait maximum 1.30 seconds. 90 सेकेंड रोकूंगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? Here we go.
The time starts now. ऐसे क्वेश्चंस हार्डली एक या दो रहेंगे 200 में से फॉर नाइपर बिट्स मणिपाल. 2 questions in 200. Rather, I would say 2 questions in that 25 questions. एक आंसर आ भी गया. 100 others. 30 seconds to go. 29, 28, 25, 20, 15, 18, 12, 14, 10, 9, 8, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All right. Correct answer is 100. And I guess we got only 5 or 6 answers. Public, still trying? Are we still trying? Do you want me to explain? Recording chalu hai na. Let's confirm. Yeah. You want me to explain or we have got it? ये घड़ी है घड़ी. ये वॉच है. इधर 12 बजे है, इधर 3 बजे है. Here it is 6 p.m. and here it is 9 p.m. Total how many hours? When it goes clockwise entirely once, it's 12 hours, right? And in 12 hours, it is completing one circle. So can I say 12 hours is equal to 360 degrees? Agree? Do you agree, boss? Yes, no. So first part is clear. Agar 12 hours is 360 degree, then how much about 7 hours? 7 hours would be how many degrees? Can I say 210? 12 hours is 360 degree. So in that case, 1 hour would be 30 degree. कैसे किया? कोई yes बोलो यार. एक ही बंदा yes बोल रहा है, बाकी को बाउंसर जा रहा है क्या? 12 hours is 360 degree. So 1 hour would be 360 divided by 12. Am I correct? So it would come down to 30 degrees. So if 1 hour is 30 degrees, how much about 7 hours? 7 hours would be 7 into 30, and 7 into 30 is nothing but 210 degrees. Clear है यहाँ तक? 7 hours का calculate हो गया? Can we go ahead? Now I am taking the same clock. पहले हम लोग ने आवर हैंड की बात की. अभी मैं मिनट हैंड की बात करता हूँ. When I am going to go through 60 minutes, how many degrees will I cover? When I'll go through 60 minutes, how many degrees will I cover? Again 360 degrees. So 60 minutes in that case is equal to 360 degrees. How about 1 minute? Can I say 1 minute is 6 degrees? Can I say 1 minute is 6 degrees? Agree? Now what is the question saying? Question is saying find the angle between the minute hand and hour hand of a clock when the time is 7:20. ये रहा clock. इधर 7 है, इधर 12 है, इधर 6 है and इधर 4 है. So something like this. 7:20 हुई है. So 1 minute के लिए 6 degrees है. So can I say for 20 minutes it would be 120 degrees? For 20 minutes will it be 120 degrees, boss? Agree? यहाँ तक ठीक है? Someone answered 90. तो उसने 120 minus 210 minus 120 किया. Correct, Riya? So probably we ended up at 90 in that case. अब problem क्या होता है? Point where we happen to go wrong. First and foremost thing, it has said 7 hours 20 minutes के बीच के angle का difference. So 7 hours 20 minutes बोला है, you need to convert everything into hours. You cannot keep it into minutes. समझा क्या बोला? 7 hours 20 minutes बोला था. I need to convert everything into hours. I cannot keep it. Am I clear? Am I clear? I'm writing something. Just try and help me understand whether you get it. 7 plus 20 by 60.
ये समझा कैसे आया? into 30. Are we clear why am I writing this? Plus 20 by 60 into 30 क्यों लिखा? Anyone who can explain this? Anyone who can explain this? 20 minutes को hours में convert करने का है. I'm dividing it by 60. और इधर 30 क्यों लिखा? Why did I write 30? Fast. We are converting 20 minutes into hours. So 20 by 60. इधर 30 क्यों लिखा? Perfect. 1 hour is your 30 degrees, right? Every hour is going to contribute to 30 degrees. So I'm multiplying it by 30. So 7 plus 20 by 30 is nothing but 7 plus 1 by 3. Agree or disagree? 21 are 23 are. So can I say 7 plus 1 by 3 into 30? यहाँ तक ठीक है दोस्त? 7 plus 1 by 3 cross multiply. 7 3s are 21. 21 plus 1 22. Divide by 3 into 30. Correct है यहाँ तक? So basically it is 22 by 3 into 30. Correct? ठीक है यहाँ तक? So 3 1s are 3 10s are. So it comes to 220 degrees. So 7 hours 20 minutes पे it is 220 degrees. And for only 20 minutes it is 120 degree. What is the angle between minute hand मतलब जो यहाँ पे है and the hour hand जो यहाँ पे है, ये दोनों के बीच का एंगल. You simply need to subtract this. 227 hours 40 minutes का था और ये सिर्फ 7 hours 20 minutes का था एंड ये सिंपली 20 minutes वाला पोजीशन है. 220 minus 120 will give you 100. Any doubts? Any questions? इसका snap ले लो. If you want you can go through this same words again. If it is still a question mark. क्या किया? पहले तो 1 hour के लिए कैलकुलेट किया, फिर 1 minute के लिए कैलकुलेट किया, फिर उसको जितने hours के लिए बोला था और जितने minutes के लिए बोला था I multiplied it by that and then I just checked it for what I wanted. 7 hours 20 minutes. Multiplied it by per hours angle. Clear enough boss? जा रहा है ना बाउंसर? सो रहा है ना तू? Can I go ahead? क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये सिली मिस्टेक हम लोग जल्दी जल्दी में क्या किया? 210 minus 120. अरे बट ये मिनट्स है, ये आवर्स है. वी कैन नॉट गो द सेम वे. दे हैव टू बी सेम. यू हैड टू कन्वर्ट दिस 7 hours 20 minutes का मिनट्स इनटू आवर्स. ठीक है? पूजा जस्ट वंस गो थ्रू दिस सोल्यूशन एंटायरली. इफ यू स्टिल डोंट गेट इट, स्नैप ले लो अभी के लिए इसका. आई शेयर रिकॉर्डिंग, जस्ट गो थ्रू इट प्रायर एंड अगर नहीं समझे लेट मी नो, विल डिस्कस इट ओवर. ठीक है? पॉसिबल हुआ तो आज लेक्चर के एंड में कर लेंगे. ऑलराइट. भी कुछ सिंपल synonyms antonyms which will be a part in which is there in your fourth booklet. तो वो जल्दी समझ जाएगा, पहुंच जाएगा. just go through that once. But let's assume that even if you have not read those words, these are some general words जो शायद options देख के we should be able to get through. So what is the opposite of obliterate? Any idea? This has been a previous year NIPER question in the past. Opposite of obliterate was? Opposite of obliterate. मेरे को नहीं मालूम है. Perfect. Reinstate. Easy. How about this? We आराम से. Don't be in a hurry, okay? How many of you have seen videos of the one which were posted on our YouTube channel? Sniper MCQ 010203. किसने देखा है? One. Just one person in? 2, 3, 4, 5. Then this question should be easy to you. A farmer traveled at speed distance time के questions हमेशा रहते हैं when it comes to NIPER Manipal bits. ठीक है? These are the easiest what we did in our school days. Am I correct? अभी वो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं है. लेफ्ट से ट्रेन आ रहा है, राइट से ट्रेन आ रहा है, एट विच पॉइंट दे मीट ईच अदर. दीज आर नॉट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. So there should not be a challenge any day.
Am I clear, boss? Over to you. A farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. Out of that total distance of 61 kilometers in 9 hours, he traveled partly on foot at 4 kilometers per hour and partly on bicycle at 9 kilometers per hour. We need to identify what amount of distance he traveled via foot. Solve करो. There is no need of option because option से भी आप direct तो ये solve नहीं कर पाओगे. Any which ways you have to solve it. So tell me, I'll show you the options. Ting dong, ting dong, ting dong. बोल बोल बोल. बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो. अच्छा, heard about Piramal? Piramal is buying one company worth 885 crores. GK, important. Just keep an eye on that. हाँ, बता दूंगा वापस एक बार. Nothing to worry. क्या है आंसर बॉस? आंसर શું आयो? नहीं आया अभी तक. इतना डिफिकल्ट है? तुम लोग नहीं बोलोगे तो आई वोंट प्रोसीड. आई जस्ट अज्यूम नहीं आ रहा है. नॉट अ सिंगल पर्सन. स्पीड डिस्टेंस टाइम 16. एनीवन एल्स? 25. ऑप्शन में 16 है, 25 नहीं है. एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? नो वन एल्स इवन ट्राइड. मैं ट्राई करता हूँ. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, राइट. बेसिक्स. तो यहाँ पे मेरे को स्पीड दिया है 9 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट स्पीड. 4 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट स्पीड. करेक्ट. आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड वाया फुट. उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दे ट्रैवल्ड इन? यार तुम लोग ये बेसिक्स में उड़ो मत, बॉस. टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड 61 kilometers. Some amount of distance he traveled via bicycle and some amount via foot. Let's assume that the amount of distance he traveled via bicycle was, say, suppose x. Okay. So what would be the amount of distance he traveled via foot? What would be the amount of distance he traveled via foot? बोलना boss. 61 minus x. 61 minus the amount of distance he traveled via foot, and x is the amount of distance he traveled via bicycle to reach a total amount of 61 kilometers. Simply represent it only in terms of distance. Now let's check if I want to make it speed into time. If I am saying the amount of distance he traveled via bicycle was x, उसका स्पीड कितना था बाईसाइकिल पे? 9 था, राइट. तो दिस वुड बी 9. मैंने स्पीड के जगह पे 9 सब्सटीट्यूट किया. ध्यान दे बॉस, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तू सो रहा है, नाश्ता कर रहा है, स्कूल से अभी आया, गेम खेलना है दादा. तो स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज x, टाइम उसने बोला है 61 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स. तो इन टोटल 9 आवर्स है. इंडिविजुअल आवर्स का कुछ अता पता नहीं. हाउ डू यू टेक इट अप? ऑब्जर्व. टोटल 9 आवर्स था. एक मिनट. So here they have assumed with respect to time t be the time traveled by foot. तो अगर फुट से उसने कुछ टाइम ट्रैवल किया है, तो द अमाउंट ऑफ टाइम ही ट्रैवल्ड बाय बाईसाइकिल वाज 9 minus t. अग्री. वी डिड द सेम वे फॉर डिस्टेंस एज ऑफ नाउ. याद है बॉस? याद है क्या? हेलो. बाय. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So if I talk about distance, distance will be speed into time, right? Distance will be speed into time. Clear enough? So when it comes to distance, total distance 61 था. स्पीड उसने दिया था इंडिविजुअल का
एक का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर था बाई फुट वाला, बाईसाइकिल वाला वॉज 9 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो ये रहा इंडिविजुअल स्पीड, क्लियर है ना? नाउ दे हैव टेकन इनटू अकाउंट इंडिविजुअल टाइम टेकन. So if total time taken was 9 hours, उसमें से t hours was the time taken when they traveled by foot. Total 9 hours है, by foot is t hours. So by bicycle would be 9 minus t. Agree? Agree or disagree? Boss. Boss. Huh. So by bicycle would be 9 minus t. Yo. Total time taken is, sorry, total distance traveled is 61. Speed was 4 hours, which was given over here via foot, and time was 9 hours, which was given via bicycle. अब इंडिविजुअल स्पीड इनटू टाइम का पैरामीटर बाकी था. So here is the time. So they have assumed that the time he traveled by foot is t. बाई फुट वाला t पकड़ लिया उसने. टोटल कितना घंटा ट्रैवल किया था उसने? 9 घंटा, राइट? टोटल 9 आवर्स था, बाई फुट 9 आवर्स हो गया. तो बाई बाईसाइकिल विल बी ऑब्वियसली 9 माइनस टी. यहाँ तक क्लियर है? Then simply just represent it in the equation. Speed into time is equal to distance. तो ये पहले वाले का है speed into time, 4 hours into time. Further what you will get is nothing but a linear equation. उसके बाद जैसे सिंपली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है. 4 into t is 40, 9 into 9 is 81, 81 minus 90 is equal to 61. Further just equate them. 40 minus 90 is equal to 61 minus 81, which further will give you minus 5t is equal to minus 20. You will get the value of t, which is nothing but 4 hours. तो ऑप्शन में शायद तभी 4 भी वर्ड होगा, तो ब्लाइंडली 4 मार्क मत कर देना. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फुट. यू गॉट द स्पीड, पहले से क्वेश्चन में स्पीड दिया था बाय फुट. यू गॉट द टाइम बाय फुट. यू नीड टू नो द डिस्टेंस, राइट? किससे मल्टीप्लाई करोगे? किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? मत जवाब दो, मैं भी स्टैचू. क्या हुआ इस्माइल? नहीं है, मेरे को मोबाइल पे भी मैसेज नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहे. क्या हो रहा है? व्हाट्स द प्रॉब्लम बॉस? बेसिक हो रहा है क्या बहुत? अभी अवेयर और नॉट इन्वेस्टिंग टाइम, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? व्हाई आर वी नॉट पार्टिसिपेटिव टुडे? क्या था आज? वेडनेसडे? कॉलेज था? कॉलेज वाले ने असाइनमेंट दिया है? व्हाई आर वी टायर्ड? इससे ज़्यादा तो थियरी लेक्चर्स में एक्टिव होते हैं हम लोग. सिंपली स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सिंपल अप्लाई करना है. डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई दैट लास्ट स्टेप. हाँ, डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई दैट लास्ट स्टेप. फर्स्ट 4 नंबर भी ऑप्शन में होगा, and in a hurry will mark 4. I don't want you to repeat the mistakes we made earlier. Am I clear? Am I clear? Am I going fast? Am I going fast? You want me to slow down more? Cool. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये कॉपी किया, स्नैप लिया, कुछ किया, लिखेगा नहीं तो फॉर्मूला रजिस्टर नहीं होएगा, फिर ऑन द डे ब्लैंक. ऑलराइट, लेट्स गो. अभी तो आवाज नहीं आ रहा था. इज देयर एनी echo? हाउ अबाउट दिस? ये लास्ट टाइम भी कोई वीडियो में देखा रहेगा. याद है, राइट? आंसर गलत दे रहे हो ना? इट्स नॉट वीजी सोमानी ना? ओ, इट्स वीजी सोमानी. ईश्वरा रेड्डी क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईश्वरा रेड्डी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईश्वरा रेड्डी? पास. ईश्वरा रेड्डी क्या है? कि कुछ था, कि कुछ है? नहीं पता? फाइंड आउट. फाइंड आउट व्हाट इज. नेक्स्ट. अवेयर अबाउट दिस? अवेयर अबाउट दिस? यूएसएफडी इज लोकेशन.
अरे रे रे रे, जेनीवा में वो है, वाइपो है जेनीवा में, वाइपो है जेनीवा में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसएफडीए शादी कर रहा है, मैरी। इधर है इधर वो, प्लीज भूलो मत हाँ। ये सब चीजें है वो नोट्स में, डोंट वरी अबाउट दिस। आपका फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। दिस इज वेयर वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन नॉट गो रॉन्ग इन एनीथिंग। इसका क्या है, इतना क्या डिफिकल्ट है, अलग अलग आंसर मिले, ए बी खेल रहे हो बॉस। Which scientists first gave experimental evidence that DNA is genetic material? वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? व्हाट डिड वाटसन एंड क्रिक डू? उसने क्या कोई मॉडल वॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल? बट व्हेन इट केम टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज दिस थ्री पीपल। नाम नाइपर के लिए बहुत जरूरी है। यू रिमेम्बर रॉबर्ट कोश? रॉबर्ट कोश याद है? KOCH आई सपोज, याद है? नाइपर के लिए सब चीजें, माइक्रोबायोलॉजी का जो स्टार्टिंग वाला था ना, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, प्लीज प्लीज गो थ्रू इट वंस। ऑलराइट, रिलेशनशिप का बात कर रहे थे हम लोग, याद है? वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशंस इन द इनिशियल गो, कौन किसका चाचा लगता है, यू रिमेम्बर? आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, जस्ट ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली। एंड जब नाइपर में एक क्वेश्चन आए, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है? सच वन क्वेश्चन वुड बी अ पार्ट इन योर एंट्रेंसेस, स्पेशली नाइपर। बेसिकली द क्वेश्चन गोज दिस वे: A is the son of B, while C is the grandfather of, GF लिख रहा हूँ गलत मत समझना, while C is the grandfather of A. Further, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। Further, D is A is son of B, C is grandfather of A, D is wife of A. What is the relation of A? Sorry, what is the relation of D to C? D और C का क्या लेना देना? ए, ए जो है वो बी का बेटा है। ए इज सन ऑफ बी, सी जो है इज ग्रैंडफादर ऑफ ए, एंड देयर इज डी हु इज वाइफ ऑफ ए। कोई डॉटर इन लॉ बोलता है सिर्फ, कोई ग्रैंड डॉटर इन लॉ बोलता है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू सी। मतलब सी तो इसका ग्रैंडफादर था, और डी उसके ग्रैंडसन की, करेक्ट, ग्रैंडसन है ना? ए इज ग्रैंडसन ऑफ सी, राइट? ए इज ग्रैंडसन ऑफ सी, डू वी अग्री? ए इज ग्रैंडसन ऑफ सी, तो ये ग्रैंड डॉटर इन लॉ होगी, सिंपल। कहाँ मिस हुआ? अगर ऑप्शन में डॉटर इन लॉ भी होता और ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी होता, हम ब्लाइंडली डॉटर इन लॉ मार्क करके आगे चल देते। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बॉस? हेलो हावार, खाना खा के जाना। बेसिकली होता क्या है, वेन एवर यू विल गेट सच क्वेश्चन इन योर एंट्रेंसेस नाइपर बिट्स मणिपाल, यू फर्स्ट नीड टू मेक दिस फैमिली चार्ट। एक एक लाइन रीड करो, एक एक लाइन रीड करते करते ऐसे फैमिली चार्ट बनाओ। In the end, there would be one line which would ask what is the relation of this to this, which you need to answer. Be careful in such type of questions. Words twist हुए रहते हैं. Don't miss out onto it. Grandfather, grandmother. Be careful with all the four options and then mark in. Don't be in a hurry. We're going to practice more than 15 full-length test papers for NIPER. Speed should not be a challenge to us during our NIPER exam. Am I clear, boss?
एम आई क्लियर बॉस? सेम वे मणिपाल में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑल्दो इट्स 200 क्वेश्चंस एंड 2 hours। बिट्स में इतना, बिट्स में मैंने ऐसे सुना है दैट कॉन्स थोड़ा सा ना हायर साइड पे होता है, तो थोड़ा सा हमको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेप करना पड़ेगा, बिकॉज द इंजीनियरिंग गाइज ऑल्सो हैव द सेम पेपर ऑफ कॉन्स, उनका कॉन स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमको वो कैब में तो मार्क्स खाना ही पड़ेगा, सो दैट कॉन्स का हमारा थोड़ा बैलेंस हो जाए। एम आई क्लियर? कैन वी गो अहेड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग नाइपर 2017, माय ओन क्वेश्चन पेपर। मेरे क्वेश्चन पेपर में मुझे पूरा क्वेश्चन दिख रहा था ऐसे ही रिलेशन वाला, ये इसका चाचा है, ये इसका काका है, ये इसका अंकल है, ये इसका आंटी है, ऐसा 4-5 लाइन का क्वेश्चन था। मैंने तो सिर्फ 2 लाइन लिखे, इमेजिन द लेवल ऑफ। मैंने पूरा फैमिली ट्री बना लिया और लास्ट लाइन लिखा ही नहीं था, मतलब क्वेश्चन ही इस पे आके रुक गया था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, आगे का क्वेश्चन ही नहीं था, एंड इट वाज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। दे चेंज्ड माय सिस्टम थ्राइस, बट देयर वाज नो सिस्टम वेयर आई कुड गेट द फुल क्वेश्चन। एंड जो मेरा 189 क्वेश्चन था वो नेसेसरी नहीं है कि और किसी का भी 189 ही हो, so in the end they just asked me to write a declaration that this question was incompletely visible on your system, you have attempted it and you should get the marks for it. Why am I telling you this? When you get such type of tree, family tree questions ना, check the question entirely, एंड में वो है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस टू दिस पूछा है क्या, वरना आप भी पूरा टाइम डालोगे वो फैमिली चार्ट बनाने में और वो क्वेश्चन आधा हो वैसा ना हो, ठीक है? Question should not be incomplete over there. Can I go ahead, sir? Hello, good night. Bye bye. यार है आज ताकत ही नहीं है तुम लोग में। If entire question not visible, which option to mark? कुछ भी mark कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. They have to give you mark, but ensure that you write an undertaking over there. On a blank document, you have to write this question number, this was the question, and the entire question was not visible. That's why I'm eligible to get the score. Voice cracking for everyone? Is it voice cracking for everyone? And just try to rejoin ना, or else just wait and it would be normal. चल, ये बेसिकली पूरा रिलेशनशिप का चार्ट है। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल ओवर हियर, बट मेजर पॉइंट्स वेयर वी हैपन टू गो रॉन्ग इज समवेयर लाइक दिस, नेफ्यू नीस, और ये वर्ड्स रहेंगे, so be careful on those grounds that you don't miss on to it. Be careful with regards to granddaughter-in-law and अभी जो हुआ वो, rest all things are normal, it should not be a big challenge. This is there in your booklet number 4, which mistakenly many of you have not received. So it will be रूट, शायद आज के वेनसडे, तो शायद थर्सडे, कल या तो परसों वो फोर्थ बुकलेट वापस कुरियर होगा तुम लोगों के लिए। जस्ट गो थ्रू इट वंस इन दैट ग्राउंड, ठीक है? कैन आई गो अहेड? चले आगे दोस्त। हेलो, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम। आई हैव 5 questions फॉर यू, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, showing a photo, it's all been dispatched at a go, you should be receiving one by one. I'll tell you, there were multiple copies for Vadodara yesterday. 2 copies got delivered on day before yesterday afternoon, and just 10-15 minutes ka distance pe another place was there, everything was dispatched together, the next person got it next morning. So in same area also there is a difference based on COVID restrictions. At your point evening mein cheeze band hai, after 8 at some point somewhere there are, after 9 situations are closed, so wo sab cheeze hai. इसका आंसर तो बोलो तुम लोग यार, सचिन आज एकदम टोटली आउट ऑफ एनर्जी। एक एक का नाम लू क्या? Are we clear? Answer is A. I'm not discussing then. Family chart बना है? नाओमी, अफजल, ऐश्वर्या, आकांक्षा, आकाश, अमृता, अनिका, आरुषि, फैमिली चार्ट बना है और ब्लाइंडली। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। फर्स्ट का आंसर ए है। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड पकड़ो, हाँ, बी फास्ट ऑन दिस। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हर मदर्स, उसकी मॉम का भाई, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर।
मतलब लड़का एक ही है, मतलब उसके फादर को लड़का भी है लड़की भी है। हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय? गर्ल की मॉम अजय से कैसे रिलेटेड है? गर्ल की मॉम अजय से कैसे रिलेटेड है? पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, वो एक लड़की को पॉइंट आउट कर रहा था फोटोग्राफ में। वो गर्ल की मॉम का भाई इज द ओनली सन ऑफ हिज ओन मदर्स फादर। अरे यार, कैसे होएगा गर्ल्स मदर? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अजय नहीं पूछ रहा है, हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय? आ थैंक्स राजलक्ष्मी। रेस्ट। आई स्टिल इन क्वेश्चन मार्क जोन। आंट कैसे आया? लड़की की मॉम कैसे रिलेटेड है पूछ रहे हैं, लड़की कैसे रिलेटेड है वो नहीं पूछ रहे। अभी ए टू बी टू सी टू डी किया तो इतना इजीली आंसर कर दिया। क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड रहेंगे, इट वोंट बी इजी। एनीवन हु इज स्टिल इन क्वेश्चन मार्क जोन एंड वांट मी टू एक्सप्लेन इट? हाँ बोलने को भी टैक्स, नो बोलने को भी टैक्स, टैक्स ही टैक्स। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, दैट्स वेयर थिंग्स वुड प्ले अराउंड। चलो क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ है, इसमें वो लड़की का फोटो है। वो फोटो पे उसने, वो फोटो को देख के अजय ने ऐसे बोला, ये जो लड़की है, ये लड़की की मॉम, हर मदर्स ब्रदर, मतलब ये लड़की की मॉम का भाई, इज द ओनली सन, मतलब ये उसका इकलौता बेटा है, ऑफ माई मदर्स फादर, मतलब अजय की मॉम के जो डैड है वो उसका इकलौता सन है। तो अगर वो उसका इकलौता सन है, हाउ इज द गर्ल्स मदर, मतलब ये जो पहले वाली थी, रिलेटेड टू अजय? तो अजय की मदर, उसका भाई, या तो पहली वाली लड़की का भाई, वो इसकी तो आंटी हुई ना। समझा? ये तीनों आपस में भाई बहन है और अजय उसमें से एक का लड़का है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? इफ नॉट, इसको क्वेश्चन मार्क रख, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, गो थ्रू करना। इफ स्टिल नॉट क्लियर, विल गेट इन टच। ये क्वेश्चंस पे ऐसे बहुत सारे वैरायटी के, लेट्स टैप अपॉन ऑल ऑफ देम। आर वी क्लियर एवरीवन? अंजेश, गुड टू गो? स्टिल क्वेश्चन मार्क? एक बार ये रिकॉर्डिंग से देख लेना, नहीं समझेगा तो लेट मी नो। क्वेश्चन को सिर्फ ब्रेक करना, क्वेश्चन को सिर्फ ब्रेक करो, इट विल गेट थ्रू। हियर वी गो। आराम से। हाँ, ये थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। A is the son of P, P is the daughter of K is the husband of O, and O is the mother of only son L. पॉइंट नंबर वन, ये क्वेश्चंस कभी भी है ना ऐसे वर्बली रीड करके सॉल्व मत करना। फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री इज मस्ट। डन? एक ही जन को? क्लियर है सबको? अंकल आ रहा है? करेक्ट। इट डिपेंड्स द वे यू वांट टू। उल्टा पढ़ के भी जमता है तो उल्टा पढ़ के करो, वापस एक बार सीधा पढ़ के सॉल्व कर लेना बस। चले आगे। एनीवन हु इज इन क्वेश्चन मार्क? अरे टेंशन मत लो, नहीं समझा तो बोलो, आई एक्सप्लेन इट। पहले तो इसमें कौन से कैरेक्टर है? पी है, के है, ओ है और एल है। ए इज द सन ऑफ पी। ए जो है वो पी का बेटा है।
मतलब पी क्या हुई उसकी, पी उसकी मॉम हुई, पी मदर हो गई ना उसकी, और ए सन है। अभी के क्या है, के इज द हस्बैंड ऑफ ओ। तो के अगर हस्बैंड है ओ का, तो ओ उसकी क्या हुई, वाइफ, बराबर। नाउ द क्वेश्चन इज, ओ इज द मदर ऑफ ओनली सन एल, मतलब एल इसका सन हुआ, किसका, ओ का। अगर एल ओ का सन है तो एल के का भी सन है ना, तो एल के का भी सन है, राइट, दोनों का ही बेटा है। अभी कनेक्टिंग लिंक क्या है, जो बीच में पी था वो पी के की डॉटर है, जो ए की मॉम थी ना वो के की बेटी है। समझा अभी पूरा रिलेशन, रिलेशन समझा अभी तक? कैन आई गो अहेड? अभी रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है, ए एंड एल के बीच में। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अंकल कैसे आया, अंजेश, इज इट क्लियर विद एवरीवन? सिर्फ चार्ट बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। द लास्ट पार्ट इज सेइंग ओ इज द मदर ऑफ ओनली सन एल। तो बेसिकली ए सन है, पी उसकी मॉम है, के उसकी ग्रैंड मॉम है, करेक्ट, सॉरी, ग्रैंड फादर है, और डब्ल्यू उसकी ग्रैंड मॉम है, तो ये उसका चाचा हुआ ना। मामा बोलते नहीं ना, आइडियली मामा, बट ऐसे बोलते नहीं इसके लिए। चले आगे, लास्ट टू क्वेश्चन फास्ट। या तो कॉपी कर लो, आई डोंट थिंक आई नीड टू, तुम लोग डायरेक्टली आंसर बोल दो, आई वोंट एक्सप्लेन इट, देयर इज अ लॉट टू टैप अपॉन। मजा आ रहा है, एंजॉइंग? लास्ट ईयर आई डेंट टेक अप दिस लाइक क्वेश्चंस, मैंने उनको सेल्फ स्टडी बोल दिए थे ये सारे क्वेश्चन। लास्ट ईयर इतना टाइम था, बट देन at the end I came to know many were facing problems, so this year we thought we'll take it up flat. Anyways, I hope it's helping. मोबाइल ऑन करके फोन साइड में रख दिया क्या? आंसर बोलो ना यार, तुम लोग कितना टाइम लगाते हो यार। पहले तो मोबाइल से लेक्चर ज्वाइन करना छोड़ दो, till the time laptop has some problem, because then you cannot go to chat box and type आंसर। बी एन बी, गुड वन शैलेंद्र, दोनों बी। एनीवन हु हैज स्टिल नॉट गॉट इट? अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो ना समझा हो तो 8:30 को बोल देना, मैं आपके साथ यहीं पे रुकूंगा और हम वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के ही आगे जाएंगे, ठीक है? कैन आई गो अहेड बॉस? बाउंसर, दोनों बाउंसर, एनीवन, और किसी को भी बाउंसर गया है? सेकंड क्वेश्चन बाउंसर, एनीवन एल्स? यू वांट मी टू सॉल्व सेकंड? कुछ नहीं, ब्रेक करते जाने का। ए इज द सन ऑफ सी, तो ये सी है, ये ए है, ए उसका सन है, अयो, ठीक है, ए उसका सन है, तो सी उसकी क्या हुई, या तो मदर या तो फादर। ए इज द सन ऑफ सी बोला है ना, while C and Q are sisters to one another। अगर ये एक दूसरे को सिस्टर है मतलब C उसकी मॉम हुई, ऐसे चार्ट बनाओ बस। और Q क्या हुई, Q इसकी बहन है। Q अगर इसकी सिस्टर है तो Q A की क्या होगी, मासी होगी, मासी, आंट, बराबर ना। इसकी बहन है तो इसकी आंट होगी ना। अभी आगे जाते हैं, Z इज द मदर ऑफ Q, तो इससे ऊपर Z इज द मदर ऑफ Q। अगर Z Q की मदर है मतलब वो C की भी मदर है, अग्री, अग्री और डिसएग्री। वो क्यू की मदर है तो वो सी की भी मदर है। अभी आगे जाते हैं, इफ पी इज द सन ऑफ जेड, अब ये नया आ गया पिक्चर में, पी,
ये जेड का सन है। ये दोनों क्या थे उसके डॉटर्स थे, राइट? सी और क्यू उसके डॉटर्स थे ना। ए बोलता क्यों नहीं है? ये उसका लड़का है ना। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस ना और टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, पर देन यू हैव टू चेक ईच स्टेटमेंट। क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए। क्यू ग्रैंडफादर हो ही नहीं सकता, वो तो लड़की है, सिस्टर है वो लोग। पी सेकंड इज द आंसर। एनीवन हु स्टिल हैज अ डाउट? जैसे मैंने सेम वे से ये करोगे। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माय आंट, वाओ। अ मैन सेड टू अ लेडी, मतलब वो मैन ने एक लेडी को बोला कि तेरी मम्मी, योर मदर्स हस्बैंड, तेरे मम्मी का हस्बैंड, मतलब वो लेडी का फादर। करेक्ट, मतलब वो लेडी का फादर हुआ ना। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, मतलब उसके फादर की बहन, उसकी आंट है। वो फादर की बहन उसकी आंट है। किसकी? वो मैन की आंट है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज दिस लेडी रिलेटेड टू मैन? भाई बहन ही होंगे ना। समझा कैसे हुआ? अगर वो इसकी आंट है, इसकी भी तो आंटी है ना। इसकी भी तो आंट है वो, तो दे आर ब्रदर सिस्टर। अरे बाळांनो, काय करायचं? इक्को ही समझा, रेस्ट। यो, मदर हस्बैंड। एक मैन ने एक लेडी को बोला, एक मैन ने एक लेडी को बोला, योर मदर्स, मतलब उसकी मदर का हस्बैंड की जो बहन है। फ्लो समझा? उसकी मदर की हस्बैंड की जो बहन है वो उसकी आंट है। आइडियली वो जो लेडी है वो उसकी भी आंटी है ना। ऐसे अपने भाषा में तो बुआ है, बट ऐसे तो आंटी है ना बॉस। मानता कि नहीं मानता? ये इसकी आंट है तो उसकी भी आंट है, तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए ना। हाँ, रिलेशन वाले क्वेश्चन एंड में सॉल्व करना।